Hello students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, in today's session we'll discuss about P block elements. And in my previous videos we have discussed about group 13 elements. So in today's session we will discuss about 14 group elements. Got it? So let's start. In today's session we will see the general introduction of P block elements, 14 group elements. After that, we will see the electronic configuration, periodicity in physical properties, and periodicity in chemical properties. Okay, and at last, we will see the anomalous property of carbon. So, let's start. First, we'll discuss about general introduction. So, in 14 group, first member it is carbon. So, carbon is the 17th most abundant element by mass in the earth crust. And carbon has three isotopes C12, C13 and C14. Okay, it means in earth crust the most abundant element is silicon, after that oxygen, okay, then aluminium, and so many elements are there. The number of carbon it is 17th. Okay, then out of these three isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14 it is radioactive isotope, and the half life of this carbon 14 isotope it is 5770 years, and it is used for radiocarbon dating. Radiocarbon dating means if we want to calculate the age of rocks, age of wooden sample, or age of any item, if we want to calculate the age of that item, then we will use carbon 14. Okay, so this carbon 14 is used for carbon dating. Okay, you have seen in pictures or news and so many things that the archaeologists they discovered egg of dinosaur. Okay, and the age of the dinosaur or the existence of dinosaur, it was how many years, thousands or so many years ago. So how can they calculate the age of the existence of dinosaurs, of the age of the sample, wooden sample or whatever the sample is there? So how can we calculate? By using carbon 14. So this is MCQ question. Then silicon is the second most abundant element on the earth crust, and it is present in the nature in the form of silica and silicate. Silicon is the second member of this list and also the second most abundant element on earth crust. Okay, silicon is very important component of ceramics, glass and cements. So this silicon is used for making these items. Germanium exists only in traces. The amount of germanium it is very less. It's a trace element. Tin occurs mainly as cassiterite, SnO2 and lead as galena PbS. So the source of tin and source of lead, these are SnO2 stannous dioxide or lead sulfide. And last point, ultra pure form of germanium and silicon are used to make transistor and semiconductor devices. Silicon and germanium, these are semiconductors. These are actually semiconductors. Okay, so these are used to prepare transistors and electronic device where electricity is used. Now we will see the electronic configuration. So the electronic configuration of the members. So first see the members of this group. These members are carbon, silicon, germanium, tin, which is also known as stannum, and lead, which is also known as plumbum. Okay, C. Symbol of carbon is C.
atomic number 6, configuration 2s2 2p2. Silicon, atomic number 14, configuration 3s2 3p2. Germanium, atomic number 32, configuration 4s2 4p6 or 4p2. Tin, so in tin the symbol is Sn. Sn means what? Sn means sternum. Stannum. Sternum. That's why the symbol is Sn. Okay, so it's a Latin word. Sternum. Atomic number is 50. So the configuration is 5s2 5p2. And lead. So now the name of lead, it is plumbum. Okay, this is the Latin name of lead. So the symbol is Pb, atomic number 82, configuration 6s2 6p2. So in all these elements you can see the outermost electronic configuration, this is s2p2. So we can write the common electronic configuration as ns2np2. So this is the electronic configuration. After electronic configuration, now we will see the periodicity in physical properties. First periodicity, it is covalent radii. Covalent radii of carbon, it is 77. Then silicon 118. After that germanium, the atomic radii of germanium is 122. Stannum 140 and lead 146. Now here the point is, on moving down in a group, atomic radii, it is continuously increasing. Okay, you can see from values the atomic radii, it is continuously increasing. After that, see second topic, ionic radii. So now see in ionic radii, the M2 plus. M2 plus means if we remove two electrons, then the ionic radii or the ion form, it will be M2 plus. Here carbon, since it's a non-metal, so it will not donate electron. That's why M2 plus is not formed, or two electrons are not reacting. Like that silicon, germanium, it is reacting. So the ionic radii of Ge2 plus, this is 73. Ionic radii of stannum 118 and ionic radii of lead, it is 119. Okay, so see here now, what can we see? Very simple. The ionic radii on in moving down in a group, it is continuously increasing. So covalent radii and ionic radii, these are continuously increasing. After that, the ionic radii in M4 plus ion. M4 plus ion means the 4 electrons are donated by the element. So carbon, it is not donating electrons, that's why the carbon is only carbon can share only electron, it cannot donate. That's why carbon and silicon, they will not form 4 plus. Germanium, it can donate. Stannum, it can donate, and lead, it can donate. So once again you can see, on moving down in a group, ionic radii or covalent radii, both are increasing. Okay, so this is the periodicity in radii, ionic radii and covalent radii. Now second physical property is ionization enthalpy. In ionization enthalpy, we will compare the ionization enthalpies of the elements, okay, in this group with the elements in previous group. So this is the group number 14. So now we will compare the ionization enthalpy from group 13. So let's see. First ionization enthalpy. So if we remove one electron from carbon, then 1086 kilojoule per mole. This is the amount of energy which is required to remove one electron. As we move down in a group, ionization enthalpy decreases. So you can see here ionization enthalpy, it is continuously decreasing, but exceptional cases lead. So why this the ionization enthalpy of this lead, it is increasing? So the reason is the poor shielding effect of D and F orbital. And what is shielding effect? So very simple, the electrons which are present in inner cell, अंदर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकने का काम करते हैं। किसके लिए रोकेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम ये कम इसको सपोज कर सकते हैं कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन खड़ा है और लास्ट में है इलेक्ट्रॉन। तो जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा। कौन सा बैरियर, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास जाने से रोकेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। पर ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, डी और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट, ये बहुत कमजोर है, वेरी वेरी वीक। सो इसमें पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इतना रोक सके। तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और यदि अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। इसलिए लीड के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस ग्रुप में आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा अगेन दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, बट फॉर लीड इट इज अगेन इंक्रीजिंग। रीजन हो गया ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो अब इससे आप कंपेयर करो। सो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कार्बन के लिए देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना है 1086, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना है 2352। इसका मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए अब और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और लास्ट फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो यदि कार्बन इससे हम C+ बनाना चाहें, ये +4 बनाना चाहें, तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कार्बन और सिलिकॉन ये +4 नहीं बनाते, बट जर्मेनियम एंड स्टेनम एंड लीड ये क्या है, ये स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे। अब इन सारे पॉइंट्स के निकालने के बाद तो ये तो हमारे पॉइंट हो गए कि अब जैसे जैसे डाउन जाएंगे ग्रुप में वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है। अब इसी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट 13 ग्रुप एलिमेंट से। तो देखो 13 ग्रुप एलिमेंट के लिए बोरॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी 801, ठीक है। बोरॉन में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना है 801 किलोजूल मोल इनवर्स। ये देखो यहाँ पर कार्बन का कितना है 1086, पर बोरॉन के लिए कितना था 801। तो दोनों में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए ज़्यादा हो गई, कार्बन के लिए ज़्यादा हो रही है डेफिनेटली। 200 किलोजूल पर मोल ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकालें, हम कंक्लूजन ये निकालेंगे 13 ग्रुप एलिमेंट्स इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, और 14 ग्रुप एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है। रीजन क्या है इसका, तो रीजन है इसका एटॉमिक साइज। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज अगेन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको नोट कर लेना है कि क्यों 13 ग्रुप एलिमेंट इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 14 ग्रुप एलिमेंट से कम होती है। तो ये तो हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आफ्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेक्स्ट फिजिकल ट्रेंड ये हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट मीन्स दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, इनमें सिंपल सा कंसेप्ट ये है अट्रैक्शन के लिए कि जिसका साइज जितना छोटा होगा, एटम का साइज जितना छोटा होगा उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और लीड के लिए लीड का साइज सबसे ज़्यादा है, इसलिए लीड के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे डिफिकल्ट होगा। तो आयोनाइजेशन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे डाउन इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये आप इसको वैल्यूज देख सकते हैं। आफ्टर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेक्स्ट ये हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट अब देखो कार्बन के लिए 4373, सिलिकॉन के लिए इतना। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है इसका डिक्रीज होते जा रहा है, बट वंस अगेन लीड के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है, वंस अगेन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए इन सब का यदि हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं, सो मूविंग डाउन इन अ ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल ट्रेंड में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सो पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सारे के सारे मेंबर्स +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट इनके करेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रीजन ये देखो, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर है 6, कन्फिगरेशन लिखते हैं हम इसका 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p2, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। एक्साइट करने पर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिंगल हो जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल दिख रहे हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को कार्बन शेयर कर सकता है, इसलिए कार्बन क्या दिखाएगा, +4। तो हमारे पास सारे के सारे जो डी और वाइट, ये हमारे पास 14 ग्रुप एलिमेंट्स है, इन सारे 14 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, S2p2, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को आप अनपेयर कर देंगे तो कितने हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 4। तो इसका मतलब सारे के सारे मेंबर्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। ठीक है, देन so moving down in a group, +4 oxidation state becomes unstable and +2 state becomes stable due to inert pair effect। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, तो जो S में इलेक्ट्रॉन हैं, ये S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगी, इनर्ट। तो जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन थे और P में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। S के ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे और P के ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये ऊपर वाले मेंबर के लिए, कार्बन, सिलिकॉन, इनके लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे तो लीड जो है ये मेनली +2 कंपाउंड बनाएगा, +4 भी बनाएगा पर इसका स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, +2। तो इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर दैट, ड्यू टू inert pair effect, germanium forms stable compound in +4 state and few compounds in +2 state. Stannum forms compounds in both oxidation state, but due to inert pair effect, +2 state is reducing agent. +2 से क्या हो सकता है, इससे +2 से +4 हो सकता है, मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो जब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। और लीड, तो लीड किसका काम करेगा, तो लीड में यदि +2 स्टेट मिल रही है, अब +2 से क्या +4 बनाएगा, तो +2 स्टेबल कंपाउंड है और +4 क्या है, +4 इसका अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इमीडिएट +4 से किस में कन्वर्ट होगा, ये +2 में। और जब +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका खुद का रिडक्शन होगा, और यदि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो लीड यदि +4 इसका कोई कंपाउंड है तो वो +4 कंपाउंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद एयर। तो मोनोऑक्साइड, ये जो हमारे पास 14 ग्रुप एलिमेंट्स है, ये 2 टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। तो मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा, E हो गया कोई एक एलिमेंट, E + O2 इट इज इक्वल टू EO, ये बनेगा मोनोऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या बहुत अच्छे जानते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर कैसा है, न्यूट्रल। GeO, जर्मेनियम ऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। स्टेनम और लीड, इनका नेचर कैसा है, M40। ठीक है, तो अब यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालें, कंक्लूजन ये है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है कार्बन, कार्बन यदि मोनोऑक्साइड बना रहा है तो वो न्यूट्रल है, फिर एसिडिक है और फिर M40 है। सिंस +4 oxidation state is most stable, hence CO is strongest reducing agent। अब इस चीज को समझ लेना, CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और कार्बन स्टेबल कंपाउंड किस स्टेट में बनाएगा, +4। तो इसका मतलब CO का क्या होना चाहिए, CO इसका खुद का होना चाहिए ऑक्सीडेशन, और जब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसका काम करेगा,
ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हो गया मोनोऑक्साइड में। अब देखते हैं हम डाइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड के लिए कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, E+O2 इट इज इक्वल टू EO2। फॉर एग्जाम्पल CO2, CO2 आपको बहुत अच्छे से मालूम है, CO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। SiO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। SnO2, PbO2 इनका नेचर कैसा है, एम्फोट्रिक। CO2 और SiO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक। SnO2, PbO2 इनका नेचर कैसा है, एम्फोट्रिक। और ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर एसिडिक देन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस पॉइंट से अब देखना, पॉइंट में क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकाले हम कि ये देखो कार्बन के दो ऑक्साइड मिल रहे हैं, CO और CO2। तो CO किसका काम कर रहे हैं, CO काम कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, और उसके साथ साथ CO नेचर है न्यूट्रल और CO2 कैसा है, एसिडिक। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स हैं वो ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ये ऑक्साइड्स मोर एसिडिक होते हैं। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, ये पॉइंट 12 में बहुत काम आएगा। और ये पॉइंट कौन सा, पॉइंट ये है कि इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन के वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। ठीक है, टिन का क्या होगा, टिन डिकम्पोजेज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। तो लीड की बात करें हम, लीड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, ओके, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। जैसे एल्यूमिनियम के चारों तरफ ऑक्साइड बन जाता है ना, वैसे ही लीड के चारों तरफ ऑक्साइड बन जाएगा। तो लीड क्या है, ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। तो बचा कौन सा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये रिएक्शन कर नहीं रहे हैं। लीड ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड है। तो बचा कौन सा हमारे पास बचा है अब टिन। तो टिन की रिएक्शन कैसे होगी, टिन रिएक्ट्स विद वाटर स्टीम टू फॉर्म SnO2 एंड हाइड्रोजन गैस। केमिकल इक्वेशन बन जाएगा Sn+2H2O SnO2+2H2। तो इस रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि सिर्फ और सिर्फ लीड, ये जो स्टेनस है, सिर्फ और सिर्फ यही वाटर स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करेगा, बाकी वाटर स्ट्रीम के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लास्ट देखते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो टुवर्ड्स हेलोजन इसमें दो टाइप के हैलाइड मिलेंगे। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने बात की थी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है और +4 भी है। तो इसका मतलब डाई हैलाइड भी बनेगा और टेट्रा हैलाइड भी बनेगा। तो डाई हैलाइड, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, EX2। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म EX2 टाइप हैलाइड्स एक्सेप्ट कार्बन, क्योंकि कार्बन सिर्फ CCl4 बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl2 नहीं बनाता है। तो ये पहला हमारे पास पॉइंट हो जाएगा, कार्बन इट डजंट फॉर्म डाइहैलाइड्स बट ऑल द एलिमेंट्स दे फॉर्म EX2 टाइप हैलाइड। देन स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन इन अ ग्रुप। अब इंक्रीजेस क्यों, तो रीजन बहुत सिंपल सा है। आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती जाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है। तो जो हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए स्टेबल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए स्टेबल है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन ये इसका जो डाइहैलाइड बनेगा SiCl2, ये अनस्टेबल होगा किसके कंपेयर में, ये कंपेयर करेंगे हम PbCl2 से। ठीक है, तो ये देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और सो ऑर्डर क्या मिलेगा, SiX2, GeX2, SnX2 एंड PbX2। गॉट इट। नेक्स्ट SnCl2, it is formed by dissolving tin in concentrate HCl। ठीक है, Sn+HCl it forms SnCl2। इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, देखो हमने क्लास 10 में स्टडी किया हुआ है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यदि यहाँ पर जो टिन है, स्टेनर है,
ये स्टेनम HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब स्टेनम कैसा हो गया, मेटल हो गया। और कार्बन हो गया नॉन मेटल, मेटेलॉइड हो गया हमारे पास जर्मेनियम, ठीक है। और एसएन स्टेनम कैसा हो गया, मेटल। तो जब स्टेनम मेटल है, टिन मेटल है, तो लीड भी क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। SnCl2 it is used as a reducing agent in acidic solution। अब SnCl2 इसमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +4। तो यदि SnCl2 बन रहा है, इसका मतलब SnCl2 में देखो, SnCl2 में स्टेनम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबल है नहीं, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल है, +4। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा, +2 कन्वर्ट हो जाएगा +4 में। और जब +2 +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और जब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इसीलिए हमने स्टेटमेंट लिखा है SnCl2 इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हो गया इसका इक्वेशन। यू कैन सी हियर आयरन का क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन का हो रहा है रिडक्शन। किसके कारण हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज ऑफ स्टेनम। इसलिए इसको हमने कहा है कि ये जो स्टेनम है ये किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेट्राहेलाइड। ये तो हो गया डाइहेलाइड। अब टेट्राहेलाइड में कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, सो ऑल द एलिमेंट्स दे फॉर्म EX4 टाइप हेलाइड। इनमें हेलाइड कौन सा बनेगा, EX4, जैसे CCl4, SnCl4, ठीक है। तो ये सारे हेलाइड कैसे बनेंगे, EX4 टाइप के हेलाइड बनेंगे। और सारे के सारे नेचर कैसे होंगे, कोवेलेंट। एक्सेप्ट कार्बन all the members react directly with halogen under suitable condition to make halides। अब डायरेक्ट क्यों रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्योंकि सीधा सा इसका रीजन आ रहा है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे, डाउन इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो कार्बन के कंपेयर में सबकी रिएक्टिविटी हाई है, इसलिए कार्बन कैसा फॉर्म करेगा, कार्बन यहाँ पर कार्बन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा क्लोरीन के साथ, बाकी सारे के सारे मेंबर्स रिएक्शन करेंगे। जैसे इक्वेशन क्या देख रहे हैं हम, सिलिकॉन +2x2 दे फॉर्म SiX4, जर्मेनियम ये फॉर्म कर रहे हैं GeX4, Sn +2x2 ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा SnX4, ठीक है। जहां पर क्लोरीन क्या होगा, ये X की वैल्यू क्या होगी, क्लोरीन और ब्रोमीन। और इसी SN को हम देखें, तो यदि इसको हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन अब हम करा रहे हैं हॉट वाटर के साथ। तो हॉट वाटर के साथ बनाएगा SnX4, बट X की वैल्यू क्या होगी, फ्लोरीन और आयोडीन। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन ये है, स्टेनस और हेलोजन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो SnX4 तो बनेगा, लेकिन यदि आपने कोल्ड टेम्परेचर इसका डाउन किया हुआ है, लो टेम्परेचर में सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्शन करते हैं, हाई टेम्परेचर में फ्लोरीन और आयोडीन रिएक्शन करेंगे। मतलब हॉट कंडीशन में फ्लोरीन और आयोडीन रिएक्शन करेंगे। तो इसमें ये हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि स्टेनस सारे के सारे हैलाइड के साथ एक जैसा रिएक्शन करते हैं, नहीं, सारे के सारे हैलोजन के साथ एक जैसा रिएक्शन नहीं करेगा। इनमें क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ये कोल्ड वाटर में रिएक्शन कर जाएगा कोल्ड कंडीशन में, और जब इसको हीट करेंगे तब फ्लोरीन और आयोडीन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका पॉइंट। हम लीड की बात करें तो लीड की कंडीशन Pb2x2, यदि ये कोल्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर डाउन होगा तो कंपाउंड में बनेगा PbX4, जहां पर X की वैल्यू क्या होगी, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टेट्रा हैलाइड्स। अब इन टेट्रा हैलाइड से आपको क्या देखना, टेट्रा हैलाइड में कब कैसे हैलाइड बनेगा ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सेप्ट CCl4 other tetrachlorides are easily hydrolyzed by water because the central atom can accommodate the lone pair of electrons from oxygen atom of water molecule in d orbital। अब देखो, हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखते हैं, ये है 6, कन्फिगरेशन हमने इसका देखा है 2s2 2p2,
तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। पर इसमें क्या डी ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल नहीं है। तो जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो कार्बन अपनी वैलेंसी को कितना इंक्रीज कर सकते हैं? कार्बन की जो वैलेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी आ सकती है +4। ठीक है, कार्बन की कोवैलेंसी कितनी आ सकती है? मैक्सिमम +4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये तो यूज हो गए किसके साथ? ये यूज हो गए हमारी क्लोरीन के साथ। कहाँ डी ऑर्बिटल इसमें है? तो जब डी ऑर्बिटल में नहीं है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन करेगा? ठीक है ना। तो ये देखो, ये इसका हम एग्जांपल लेते हैं। SiCl4, कार्बन तो रिएक्शन कर नहीं रहा है तो सिलिकॉन रिएक्शन करेगा। SiCl4 undergoes hydrolysis by initially accepting lone pair of electrons from water molecule in d orbital of Si। अब देखो, d orbital of Si, इसके हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है और फाइनली फॉर्मेशन क्या होगा? SiOH4 का। इक्वेशन कैसे बनेगा? सबसे पहले इक्वेशन हम बनाते हैं सिलिकॉन। इस सिलिकॉन के साथ कितने क्लोरीन हैं? तो 4 क्लोरीन है। ये हो गया SiCl4। इसकी रिएक्शन किससे कराना है? वाटर के साथ। तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंट स्ट्रक्चर है। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा सिलिकॉन के पास, क्योंकि सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल है। इसी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। कैसे दिख रहा है? तो वेरी सिंपल, सिलिकॉन, इसका कन्फिगरेशन हमने लिखा है 3s2 और 3p2। 3d क्या होगा? 0। ये हो गया 3p2। तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो यहाँ तक बना लिया हमने। एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम एक्साइट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? p में। तो यहाँ पर से 4 क्लोरीन ने अपना बॉन्ड बना लिया, पर डी ऑर्बिटल अभी भी कैसा है? वेकेंट है। इस डी ऑर्बिटल में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो डी ऑर्बिटल यदि अवेलेबल है तो फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इसलिए SiCl4 का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। अब ये हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? सिलिकॉन के पास। तो बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कौन सा बनाएगा? सिलिकॉन। इसके 4 क्लोरीन तो एज इट इज हैं। ये बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये बॉन्ड किसका दिख रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इसमें से अब हमको क्या करना है? HCl को रिमूव करने हैं। कौन कौन से HCl को रिमूव करना है? तो ये देखिए, ये HCl निकलेगा। कौन कौन सा HCl निकलेगा? एक ये H निकलेगा और एक ये Cl निकलेगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास? Si 3Cl और एक OH। गॉट इट? तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। सिलिकॉन, इस सिलिकॉन के पास 3 क्लोरीन रहेगा और एक OH रहेगा। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस। और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा? पैटर्न फिर से वही सेम रहेगा। ये OH फिर से रिएक्ट करेगा। तो अब इस OH में क्या है? एक हाइड्रोजन, अभी भी एक क्लोरीन है। तो इस क्लोरीन की जगह क्या जाएगा? एक OH। देखो सिंपल सा था, ये दोनों HCl निकले थे। इसका मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल रहा है। फिर से वाटर का एक हाइड्रोजन एक और क्लोरीन के साथ निकलेगा। फिर एक और हाइड्रोजन एक और क्लोरीन के साथ, एक और हाइड्रोजन एक और क्लोरीन के साथ। तो 4 क्लोरीन है हमारे पास। 4 क्लोरीन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, और जब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? चारों के चारों Cl रिप्लेस हो जाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगा? ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा कि चारों के चारों क्लोरीन किससे रिप्लेस हो गए? OH से। तो ये क्या बन गया? ये बन गया SiOH4। तो SiCl4, इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर ये क्या बना रहा है? SiOH4 बना रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? सिलिकलिक एसिड। सिलिका ही क्यों बना हुआ है? एसिड नाम हो गया इसका सिलिसिक एसिड। नाम देखो, नाम क्या होगा इसका? SiLiCiC, सिलिका ओइक। तो ये हो गया सिलिकिक एसिड। ठीक है, चलिए सिलिकिक एसिड बन गया। तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब इसका फॉर्मेशन देख लिया। तो फॉर्मेशन से अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो हमारे पास सिलिकॉन था, इस सिलिकॉन की कोवैलेंसी कितनी है? तो देखो, अभी यह सिलिकॉन क्या कर रहा है?
ये सिलिकॉन टोटल अभी, ये जो सिलिकॉन है हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखा रहा है, +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +4। यहाँ इसने एक ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड बना लिया, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है तो सिलिकॉन अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, +4 से ये क्या बना सकता है, +6 भी बना सकता है। तो जब ये +6 बनाएगा तो इस कंडीशन में 6 क्लोरीन को ये एक्सेप्ट कर सकता है। अभी हमारे पास कितने क्लोरीन थे, 4 क्लोरीन है। अभी ये 2 क्लोरीन को और ऐड कर सकता है। क्यों ऐड कर सकता है, क्योंकि सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन है SiF6 इज नोन वेयर एज SiCl6 इट इज नॉट नोन। रीजन, तो ये देखना क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन ये हमारे पास कि जो सिलिका है, ये सिलिका SiF6 2- आयन बना सकता है, जबकि SiCl4 2- ये आयन नहीं बन सकता। ऐसा ये 6 ये आयन नहीं बन सकता। क्यों, तो रीजन ये है कि सिलिकॉन में हमने देखा है SiCl4 यहाँ तक तो बन सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है। क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास तो रहेंगे। इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये किसको डोनेट करेगा, सिलिकॉन को डोनेट करेगा। लेकिन सिलिकॉन का साइज इतना छोटा है कि ये क्लोरीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये SiCl4 से SiCl6 नहीं बनाएगा। तो रीजन सिंपल सा है। रीजन क्या है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन। अब लास्ट पॉइंट है एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो एनोमैलस प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एनोमैलस प्रॉपर्टी, पहले इसका रीजन देख लीजिए। तो रीजन वही हमारे पास जो क्लासिकल वे में है, मेटल यदि है तो मेटल में क्या क्या लिख सकते हैं हम, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और ऐड कर देंगे। कार्बन में साइज बहुत छोटा है, ये हमने देखा था। कार्बन का कोवेलेंट रेडियाई कितना था, 77 pm। तो इसका मतलब कार्बन का साइज बहुत छोटा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ वेरी हाई, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डोनेट नहीं करेगा। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इससे इसका इफेक्ट क्या होगा, यदि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। और d ऑर्बिटल नहीं है तो d ऑर्बिटल नहीं होने से ये अपनी वैलेंसी को भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गए एनोमैलस बिहेवियर के रीजन। अब हम देखते हैं कौन कौन सी एनोमैलस प्रॉपर्टी है। कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। ठीक है, कार्बन भी हमने देखा है कार्बन क्या करता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो ये कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। दूसरे एटम के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। तो ये कार्बन क्या कर रहा है एक्चुअली, ये अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर रहा है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इतना ये कार्बन अपनी बॉन्डिंग को बना सकता है। बाकी एलिमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये हो गया इसका एक एनोमैलस प्रॉपर्टी। सेकेंड है हेवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म p बॉन्ड बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अब देखो टू लार्ज का मतलब क्या, कार्बन में जब हम पाई बॉन्ड बनाते हैं तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये इनके बीच में ओवरलैपिंग से बनेगा। ये हो जाएगा सिंगल पाई बॉन्ड और ये होगा दो पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इनका साइज तो बहुत छोटा है कार्बन का, इसलिए ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास बाकी हैवियर एलिमेंट्स हैं उनका साइज इतना बड़ा है कि इनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। और जब अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कहाँ से बनेगा,
नहीं बन सकता पाई बॉन्ड। इसी टाइप से यहाँ पर आप देखो इन ऑर्बिटल्स को, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, और जब डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो इनमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कार्बन हैज टेंडेंसी टू लिंक विद अदर another one another carbon atom through covalent bond to form chain, मतलब जिसको हमने कैटिनेशन कहा है। तो कार्बन में कौन सी कैपेसिटी होती है, कौन सी टेंडेंसी है कार्बन की, कैटिनेशन की, एक लंबी चेन बना सकता है। और ये लंबी चेन किसके साथ बन सकता है, कार्बन एटम के साथ लिंक बना सकता है। ठीक है, ये हमने 10th में कैटिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था। सो कैटिनेशन के बाद कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है। और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, हेंस टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इट इज डिक्रीजेस। सो ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में क्या देख लिया हमने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना सकता है, बाकी एलिमेंट नहीं बना सकते। कार्बन ये इसमें कैटिनेशन हो सकता है, बाकी में कैटिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रीजन बहुत सिंपल सा है कि कार्बन का सीसी बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और साइज बहुत छोटा है। तो देखो कार्बन के एनोमलस प्रॉपर्टी का रीजन क्या आ गया, एनोमलस प्रॉपर्टी का रीजन आ गया स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ d orbitals. Got it? That's all for today's session. Now if you have doubt you can contact me. Thank you very much.